crackdown against the terrorist stand. Now, sources have revealed that Pakistan was placed on a terrorism financing watchdog's grey list. The Financial Action Task Force, a global body that combats terrorist financing and money laundering, argued Pakistan had failed to act against terror financing on the soil. In fact, an official announcement is expected soon. Earlier, Pakistan caretaker Finance Minister Dr. Shamshad Akhtar urged the FATF to remove Pakistan from its grey list. Geeta Mohan, my colleague, now joins me for more on this story. Geeta, this will be another setback and embarrassment for the Pakistan yet again. How much of a deterrent is it going to be as far as the anti-terror activities in Pakistan is concerned? Well, it is going to be a huge deterrent. It is going to be a huge, Pakistan, Ankit, is going to be in huge economic trouble because what FATF does is put huge financial constraints in a country that is put on the grey list. Pakistan suffered it between 2012 and 2015 when it was indeed on the grey list of the FATF, and with great difficulty came out of that grey list. Now officially Pakistan will be grey listed at the end of the session, and the decision has been taken despite the caretaker Finance Minister Shamshad Akhtar trying to defend Pakistan, saying that a lot has been done, but absolutely unconvinced. The global watchdog has asked Pakistan to do more. Until the time Pakistan really shows some action, they will be on the global the global watchdog's grey list, and which means that most of the banking institutions that work with Pakistan, international banking institutions, might not be able to assist Pakistan economically the way they normally do freely when countries are not on the grey list. So huge economic trouble and woes now in the near future for Pakistan, with Right. Pakistan being on that watch list. Thank you so much for joining me with all those details. More than 1.5 years after India carried out the surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir, its undeniable proof is finally out. In these images, India's brave can be seen destroying 4 terror targets in Pakistan-occupied Kashmir. In fact, the tactical operation was India's response to Uri's 9 attack by Pakistan-backed terrorists, in which 18 Jawans were martyred. Hitting back at Pakistan Prime Minister, in fact, on the Prime Minister on the release of this video, senior Congress leader Salman Khurshid tweeted saying PM Modi looking for appreciation for surgical strike. In a pre-dawn strike which was carried out by India's para commandos on 29 September 2016, at least 7 terror launch pads were destroyed, 38 terrorists were eliminated, and 2 Pakistani soldiers were also gunned down. Remember, Pakistan has been repeatedly denying India's claims of surgical strikes in the Pakistan-occupied Kashmir. All right, let's very quickly cut across to this live press conference of the Congress party where Randeep Singh Surjewala is speaking on the various. You listen. 1962, 1965, 1971, 1999 के युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी व कुर्बानी की गाथा आज भी जन जन की जबान पर है। स्वयं से पहले भारत माता की सेवा और सर्वोच्च बलिदान देकर भी तिरंगे को सदैव आकाश में फहराते हुए देखना हमारी सेना और अर्धसैन्य बलों का एकमात्र सिद्धांत रहा है। पिछले 2 दशकों में अलग अलग समय सटीक रणनीति से की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स हमारी सेना की हिम्मत और दृढ़ता का परिचय देते हैं। देश को गर्व है कि हमारी बहादुर सेना ने पिछले 2 दशकों में अनेकों बार सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, खासतौर से साल 2000 के बाद, और उनमें से 9 मुख्य हैं। 21 जनवरी 2000 नडाला एन्क्लेव नीलम नदी के पार, 18 सितंबर 2003 बरोह सेक्टर पूंछ,
19 जून 2008 भट्टल सेक्टर पूंछ, 30 अगस्त और 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर, नीलम नदी घाटी में केल में, 6 जनवरी 2013 सावन पत्थर चेक पोस्ट पाकिस्तान, 27 और 28 जुलाई 2013 नाजा पीर सेक्टर पाकिस्तान, 6 अगस्त 2013 नीलम घाटी पाकिस्तान, 14 जनवरी 2014 आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह के 23 दिसंबर 2013 को ही सर्जिकल स्ट्राइक बारे बयान और 28-29 सितंबर 2016 डीजीएमओ का बयान और कल जारी हुए सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियोस। 28-29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक तथा हमारे देश के खिलाफ आतंकी मंसूबों को विध्वंस करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सेना की बहादुरी और सरकार को समर्थन दिया था। परंतु सत्ताधारी दल को यह याद रखना होगा कि हमारे साहसी सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का लज्जाजनक तरीके से राजनीतिकरण किया। यहां तक कि भाजपा ने आगरा और लखनऊ में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी के सम्मान समारोह तक बुला डाले। अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स द्वारा भारी भरकम प्रचार प्रसार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा श्रेय सेना की बजाय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को दे डाला। देश के लिए जान की बाजी तो सैनिकों ने लगाई, परंतु भाजपा ने महिमा मंडन किया मोदी जी का। सच्चाई यह भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक और चुनावी फायदा लेने को आतुर भाजपा सरकार ने हर परंपरा और परिपाटी तोड़ दी है। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तो हद ही कर डाली जब सेना के 70 सालों के गौरवशाली इतिहास और बलिदान का अपमान करते हुए 7 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में यहां तक कह डाला कि 68 सालों में भारतीय सेना पहली बार एलओसी के पार गई है, और यह भी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाएंगे। जवान की शहादत पर राजनीतिक रोटियां सेकने हेतु भाजपा ने शहीद सुबोध की विधवा श्रीमती सीमा और शहीद हेमराज की विधवा श्रीमती धर्मवती के इस बयान को भी दरकिनार कर डाला कि शहीद की शहादत का राजनीतिकरण ना किया जाए। एक तरफ मोदी सरकार और भाजपा देश के सैनिकों और सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लूटने की होड़ में हर हथकंडा अपनाए है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक दृढ़ नीति व दिशा प्रदान करने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। शायद यही कारण है, और मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 146 सैनिक शहीद हो चुके। पाकिस्तान 1600 से अधिक बार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर चुका और 79 आतंकवादी हमलों ने सरकार के झूठे दावों की पोल खोल दी है। सेना के प्रति मोदी सरकार का दुराग्रह,
वह दोगली तथा खोखली बातें केवल इस बात से साबित हैं कि सरकार ने सेना के बजट में कटौती कर वह आधुनिक सुरक्षा उपकरण मुहैया ना करवा साफ तौर से देश की सेना से सोतेला व्यवहार किया है। मजबूरन वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र को सार्वजनिक तौर से यह कहना पड़ा कि सेना के पास 68% हथियार विंटेज हैं, यानी इस्तेमाल योग्य नहीं हैं। सेना के बजट में कटौती की वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आने वाली खरीद 94% से घटाकर 50% करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते अब हिंदुस्तान के फौजी को ना ड्रेस मिलेगी, ना कॉम्बैट ड्रेस मिलेगी, ना बेल्ट्स मिलेंगी, ना जूते मिलेंगे, ना दूसरे उपकरण मिलेंगे, और यह सब उनको स्वयं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। छद्म राष्ट्रवादियों ने जो सेना के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव किया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है रक्षा संसदीय समिति की रिपोर्ट, जिन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उरी के हमले के बाद, डोकलम के स्टैंड ऑफ के बाद कोई पैसा आधुनिकीकरण के लिए सेना को मोदी सरकार द्वारा नहीं दिया गया। और चौंकाने वाली बात यह भी रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने कही कि आधुनिकीकरण का पैसा तो सेना को देना दूर, उल्टा जो पैसे की खरीद जारी है उसके लिए 29,000 करोड़ रुपए चाहिए, परंतु मोदी सरकार ने मात्र 21,000 करोड़ दिया, यानी कि चालू खरीद भी पूरी नहीं हो पाएगी। सेना से भेदभाव करने वाली मोदी सरकार का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक साल से भारतीय सेना के ऑफिसर्स का राशन मोदी सरकार ने बगैर कारण बताए गैर कानूनी तरीके से बंद कर रखा है। सेना से भेदभाव का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक साल से मोदी सरकार ने सेना के जवानों का मसाला भत्ता बंद कर रखा है। सेना से दुर्भावना का मोदी सरकार का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि रेजिमेंट अलाउंस एक साल से मोदी सरकार ने घटाकर आधा कर दिया है। सेना से दुर्भावना का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि सेंट्रल कैंटीन, जहां पर सस्ते दरों में सैनिकों को आम जरूरियात की वस्तु मिलती हैं, उस पर मोदी जी और जेटली जी ने जीएसटी कर पहली बार लगा दिया है, जो हमेशा कर मुक्त रही। दोस्तों, एक तरफ तो मोदी सरकार जय जवान जय किसान के नारे का राजनीतिक शोषण कर रही है, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की वीर गाथा को वोट हथियाने के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश। झूठे जुमलों से ऊपर उठ अब देश जवाब मांग रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई और श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुई जो सर्जिकल स्ट्राइक और सैन्य ऑपरेशंस थे, उनकी सफलता को लेकर छाती पीटने और छद्म राष्ट्रवाद दिखाने के लिए क्या इन दोनों प्रधानमंत्रियों या उनकी सरकार ने मोदी जी की तरह कभी कोशिश की थी? हम पूछना चाहते हैं और कि कूटनीतिक और सामरिक निर्णय दूरगामी परिणामों को सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने खामोशी से लिए जाते हैं, छाती पीटकर नहीं। क्या मोदी सरकार ने इस सैन्य कार्यवाही के बाद वोट बटोरने की कुचेष्टा और अपना 56 इंची सीना झूठी तौर से दिखाने हेतु इन सारे मामलों को सार्वजनिक कर सीमा पर तैनात सैनिकों व सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों दोनों की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम नहीं किया है? हम पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार देश की सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को खतरे में नहीं डाल रही है? हम पूछना चाहते हैं क्या मोदी सरकार सही उपकरण व बजट ना देकर
देश के सैनिकों की जान को जोखिम में नहीं डाल रही है? हम पूछना चाहते हैं कि जब जब नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी पर असफलता यानी फेल होने का संकट मंडराता है, तो तब तब उन्होंने सेना के शौर्य को सियासी तौर पर भुनाने की याद क्यों आती है? फिर इसके लिए चाहे सेना और चाहे सीमावर्ती नागरिकों को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार देश के बहादुर सैनिकों की वीर गाथा का दुरुपयोग कर राजनीतिक फायदे के लिए उनके बलिदान की वेदी पर राजनीतिक सिंहासन सजाकर वोट नहीं बटोर रही, इसका प्रयास नहीं कर रही? हम पूछना चाहते हैं कि अगर देश के सैनिकों का झूठे राष्ट्रवादियों को इतना ही ख्याल है, तो 3 साल से इस देश के पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं। 3 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त पर देश के पूर्व सैनिकों को दिल्ली पुलिस ने घसीटकर मारा और गिरफ्तार कर लिया, परंतु 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। क्या यही आपका छद्म राष्ट्रवाद है? मोदी जी, सेना का शौर्य गर्व का विषय है, राजनीति और वोट बटोरने का साधन नहीं। हमें उम्मीद है कि हेडलाइन मैनेजमेंट से पहले आप इस मूलभूत सिद्धांत को अवश्य ख्याल में रखेंगे। आदरणीय साथी, इन सब की संख्या डेट वाइज और सेक्टर वाइज मैंने बता दी है, समेत सितंबर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के 2000 से पहले भी हमारी सेना बहादुरी और पराक्रम का परिचय देती रही है, 1947 से आज तक, और सदियों बाद भी देती रहेगी। क्योंकि ये देश अगर आजाद है, इस देश के लोग अगर स्वतंत्र और खुली हवा में सांस लेते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा श्रेय हमारे बहादुर सैनिकों, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है। हमें इस बात का मान है। प्रश्न बड़ा सीधा है। एक सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आपने जारी किया, उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि देश सेना का सम्मान करता है। और अगर सेना एक शब्द भी कह दे, तो वो शब्द भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखे शब्द के बराबर है, और हम सब उसको स्वीकार करते हैं। परंतु आपने वीडियो जारी किया, अच्छी बात है। सवाल यह है कि क्या आप सेना के शौर्य, सेना के बलिदान, सेना के पराक्रम, सेना के साहस का इस्तेमाल केवल और केवल राजनीतिक वेदी पर रोटियां सेकने के लिए करेंगे? पराक्रम और कुर्बानी सेना दे, महिमा मंडन हो मोदी जी का, यह नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा शहीदों की विधवाओं ने अनेकों बार कहा, मोदी सरकार को राय दी कि सैनिकों की शहादत का मोदी जी राजनीतिकरण मत करिए, क्योंकि सैनिकों की शहादत शौर्य गाथा है, गर्व की शौर्य गाथा पूरे देश के लिए। ये राजनीतिक रोटी सेकने का माध्यम कभी नहीं हो सकती। आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी के ही 2 वरिष्ठ नेताओं ने वो प्रश्न उठाए थे। उनमें से एक सम्मानित पूर्व वित्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, एक देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के। मुझे लगता है ये विषय उनका एक आंतरिक मामला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी वो पहले नेता थे और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आगे बढ़कर वक्तव्य दिया और कहा कि हम हमारी सेना के पराक्रम और साहस की प्रशंसा करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे
आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से एक निर्णायक निर्णय उन्होंने लिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय हो सकती है और दो राय का यह प्रश्न है ही नहीं। इसीलिए आज फिर मैंने उस विषय को दोहराया, पर यह भी इस देश को आगाह होने की जरूरत है कि हर बार जब मोदी सरकार फेल होने लगती है, हर बार जब अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, तो वो सेना के शौर्य का दुरुपयोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्यों करते हैं? और क्या कारण है कि सेना ने तो पराक्रम दिखाया, सेना ने तो अनेकों बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, पर क्या मोदी जी ने भी राजधर्म निभाया? क्या मोदी सरकार भी अपनी कसौटी पर खरा उतर पाई? क्योंकि अगर खरा उतरती तो सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 146 सैनिक शहीद ना होते। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की यह हिम्मत ना होती अगर मोदी जी पाकिस्तान को लेकर ठोस नीति अपनाते कि वो 1600 बार हमारी एलओसी का उल्लंघन कर जाए। उग्रवादी जिनको पाकिस्तान की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये मोदी जी की ढुलमुल नीति का परिणाम है कि 79 बार 79 टाइम्स उग्रवादी आकर हमारे देश पर हमला करने की जुर्रत कर दें। हमारे सैनिक और सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हमारे नागरिक तो आए दिन पाकिस्तानी आतंक से और पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हैं, पर दिल्ली में बैठे झूठी 56 इंच का सीने की बात करने वाले नेतागण उस सीने को कब और कैसे पाकिस्तान को दिखाएंगे? प्रश्न ये है। यह प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए जिनके मन में छटपटाहट है, या उनसे पूछा जाना चाहिए जो एक विशेष डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हमारी सेना का पराक्रम शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उनके साहस और कुर्बानी की गाथा 1947 से आज तक 132 करोड़ भारतीयों की जबान पर है। पर सेना से जो भेदभाव किया जा रहा है, सेना से जो दुराग्रह बरता जा रहा है, सेना के साथ जो भेदभाव की नीति मोदी सरकार अपना रही है, सेना के ऊपर जिस प्रकार बजट काट कर या उपकरणों के आधुनिकीकरण ना करके खतरे के बादल मंडराए जा रहे हैं, उसको लेकर देश के हर नागरिक को समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता अवश्य है। क्या कारण? Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.